Good morning everyone. In this question it is said, if in a triangle PQR, sin P, sin Q, sin R are in AP, then what we need to tell is whether their altitude will be in AP, HP or GP. Okay, so first of all, what we do is we draw a triangle. So this is our triangle. This is PQR. Let this name as P, Q and R. It is given that we need to find the relation in altitude. So if we draw an altitude from P, so this will be 90 degree. The area, let this be any P1. So the area of triangle PQR, that is half base height. So this will be half. So this length will be corresponding to P will be A, corresponding to Q will be B, corresponding to R it will be C. This will come out to be half into P1 into A, P1 into A, or we can write triangle, this will be P1A by 2. Or from here, if we find P1 value, this will come out to be 2 into area of triangle divided by A, 2 delta upon A. Similarly, we can find our P2. P2 will be 2 delta upon B, and P3 will be equal to 2 delta upon C. Okay, so now what we do is, for circumradius radius R, we know the relation is A upon 2 sin P, that is this angle. This is equal to B upon 2 sin Q, and this is equal to C upon 2 of sin C or sin R. So from here, if we find the value of sin P, sin Q and sin R, we will get our sin P will be equal to A upon 2R, sin Q will be B upon 2R, our sin R will be C upon 2R. So from here it is given that these three terms are in AP. That means our ABC will also be in AP. Okay, that means our terms ABC will be in A, B, C, or will also be in AP, as their denominator is same, so the numerators will be in AP. So if ABC and are in AP, that means 1 upon A, 1 upon B and 1 upon C, they will be in HP. So using that result R, if we see our P1, P2 and P3, we can say that our P1, P2 and P3, they are in HP, as the numerator is same, that is 2 into 2 delta, that is 2 into the area of triangle divided by A, B and C. So this will be in HP. So our correct answer will be option B, that is altitude are in HP. Thank you. ओके, तो क्वेश्चन में गिवन है कि ABC एक ट्रायंगल है सच दैट कि उसका जो है एंगल ACB पाई बाई 6 गिवन है, और मुझे जो साइड्स हैं वो ऐसे कुछ है. A साइड है बेसिकली x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, B साइड है मेरा x स्क्वायर माइनस 1, और C साइड है बेसिकली 2x प्लस 1. तो अब पूछा है कि अगर ABC इस फॉर्म में है तो x की क्या वैल्यू होगी, ताकि मेरा जो ACB एंगल है वो बेसिकली पाई बाई 6 रहे. तो ACB पाई बाई 6 का मतलब कि एंगल 6 जो है ये पाई बाई 6 है. तो अब कॉस रूल मुझे पता होता है कि कॉस C होता है बेसिकली A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर ओवर 2AB. तो इसका यूज करते हुए मैं लिख सकता हूँ cos C कितना हो जाएगा, cos पाई बाई 6 जो कि होता है √3/2. दिस इज इक्वल टू A स्क्वायर कितना है, ये है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर, B स्क्वायर हो गया
एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जो कि है 2x प्लस 1 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में ये है मेरे पास 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो अब अगर मैं यहाँ पे ये 2 कैंसल आउट कर सकता हूँ। फिर अब अगर आप इन दोनों टर्म्स को देखो तो ये दोनों टर्म्स के लिए अलग से मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। तो ये क्या है बेसिकली कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ये है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और a प्लस बी अगर कर दूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो दिस इज बेसिकली ये क्या हो जाता है x इंटू एक्स माइनस 2, और इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ओके, तो फिर जो है ये क्या टर्म आता है बेसिकली कि √3 दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, एक मिस्टेक हो गई, जब a माइनस बी कर रहा था तो एक्स स्क्वायर प्लस x1 प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1 होगा। तो यहाँ पे ये 2x नहीं होगा, यहाँ पे बस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आएगा, जिसके कारण ये हो जाएगा 1। ओके, तो ये हो जाता है बेसिकली प्लस ये है x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और ये है x प्लस 2 ओवर ये क्या है 2 कैंसिल हो गया था, तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो अब इन दोनों टर्म्स को देखो तो ये x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ये भी बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो √3 इज इक्वल टू, मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर कॉमन ले लूँ न्यूमरेटर में तो ये क्या बच जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये हो गया प्लस बेसिकली x इंटू एक्स प्लस 2। ओके, और डिनोमिनेटर में भी मेरे पास एक एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है, और ये हो गया बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये दो टर्म्स जो हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये दोनों कैंसिल आउट, तो ये बेसिकली आता है √3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये हो गया बेसिकली 2x स्क्वायर, और ये है प्लस 2x, और ये हो गया बेसिकली माइनस 1। तो मैं सबको अगर राइट हैंड साइड ले आ जाता हूँ तो ये होता है 0 इज इक्वल टू ये है 2 माइनस √3 एक्स स्क्वायर, और ये हो जाता है प्लस x अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये है 2 माइनस √3, और ये हो गया माइनस 1 माइनस √3। ओके, दिस इज इक्वल टू 0। तो फिर अब मैं कैसे लिख सकता हूँ इसे, बेसिकली यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 2 माइनस √3 से डिवाइड कर दूंगा तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 प्लस √3 ओवर 2 माइनस √3। ओके, तो अब जो है इस टर्म को मैं रैशनलाइज कर लेता हूँ, तो ये हो गया 1 प्लस √3 ओवर 2 माइनस √3। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाता है 2 प्लस 3 प्लस ये हो गया 2√3 3√3। ओके, और डिनोमिनेटर 2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, तो ये 1 आ गया, तो बेसिकली दिस इज 5 प्लस 3√3। ओके, तो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ये हो गया 5 प्लस 3√3। तो इसको जो रूट्स होंगे वो होंगे x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो जाता है 1 और प्लस ये हो जाएगा 4 इंटू 5 प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है, तो ये है 20 प्लस 12√3। ओके, और डिनोमिनेटर में आ गया 2, तो ये है मेरे पास 21 प्लस 12√3 जो है ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है दिस इज इक्वल टू 2√3 प्लस 3 का स्क्वायर। ओके,
क्योंकि आप देखो 2√3 का स्क्वायर कितना होता है 12, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू 2√3 इंटू 3, तो ये जो है ये बेसिकली 21 प्लस 12√3 है। ओके, तो यहाँ से x इज इक्वल टू -1, ये हो गया प्लस माइनस 2√3 प्लस 3 ओवर 2। ओके, तो पहले x इज इक्वल टू प्लस वाले के लिए कर लेते हैं सॉल्व, तो ये हो गया -1 प्लस 2√3 प्लस 3 बाई 2, तो ये आ जाता है मेरे पास बेसिकली 2 प्लस 2√3 बाई 2, तो ये है 1 प्लस √3। ओके, माइनस वाले के लिए अब सॉल्व करते हैं, तो x इज इक्वल टू ये है -1 माइनस 2√3 और ये है -3 बाई 2, तो ये बेसिकली आ जाता है मेरे पास x इज इक्वल टू -4 बाई 2 यानी -2, और ये हो गया -√3। तो यहाँ पे मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये है बेसिकली 2 प्लस √3। ओके, तो फिर ये जो है x की दो वैल्यूज आ गई मेरे पास, एक है 1 प्लस √3, एक है माइनस ऑफ 2 प्लस √3। तो मेरे आंसर कौन कौन से ऑप्शन, ओके ऑप्शंस मैंने नहीं लिए हैं यहाँ, तो ये दो नो x की वैल्यूज अलाउड हैं। ओके, Hello students, there exists a triangle ABC satisfying the conditions this. Okay, so here we have four conditions. Now the sign formula is what is A by sin A, which is equals to B by sin B, right? So we can write like this also, and B. Okay, so here what we have now, this what we have in the first condition. Here we have our first condition, which is B sin A is equals to A. Okay, so now let's solve it. That since B sin A will be equals to A sin B, right? It will be equals to A sin B. And now what we will have is equals to A. So here we will have is B is equals to pi by 2, right? Since angle A pi by 2, therefore the triangle is possible here. Is possible. Okay, now let's do with the second condition also. We have given second condition is this. So let me clear one thing, that second condition and third condition is B sin A, which will be A sin B is greater than A, then sin B is also greater than 1. So in these both condition, almost these are same, right? So in these both condition, we can say that triangle ABC is not possible. Okay, and here we have a last condition also, which is B sin A, which is B sin A, this. Okay, so we have a formula that B sin A is equals to A sin B, it will be 1, and here we can say that sin B 1, it means angle B exists, right? So now greater than A, and it means this, since A is pi by 2, therefore the triangle is possible. So we can say that in condition A and conditions D, in which the triangle is possible, and B and C, in this conditions triangle ABC is not possible. Okay, thank you. In this question, let A1, A2
A3 up to AN be the vertices of an n-sided regular polygon such that 1 upon A1 into A2 equals to 1 upon A1 A3 plus 1 upon A1 A4. Find the value of n. Okay, so अब हमें पता है R is the circumradius. Okay, so A is the suppose so circumradius क्या होती है, रिलेशन कहते हैं A is equal to 2R sin pi by n. n is the n-sided polygon. ओके, सो यहाँ से R किसके इक्वल आ गया, सो A1 क्या आ गया यहाँ से, बिकॉज वी नो दैट R क्या होता है A अपॉन 2 साइन पाई बाई n. सो यहाँ से A किसके इक्वल आ गया 2R साइन पाई बाई ए, मीन्स A1 A2 इक्वल्स टू 2R साइन अल्फा एंड A1 A3 equals to 2R sin 2 alpha and A1 A4 equals to 2R sin 3 alpha, where alpha is pi by n is the n-sided polygon. So 1 upon A1 A2 is, so this will become 1 upon A1 A2 is 2R sin alpha equals to 1 upon A1 A3 is 2R sin 2 alpha plus 1 upon A1 A4 is 2R sin 3 alpha. So 1 upon 2R कॉमन लेंगे, इसमें हो जाएगा 1 upon sin alpha equals to 1 upon sin 2 alpha plus 1 upon sin 3 alpha. So this will become 1 upon sin alpha, sin 2 alpha into sin 3 alpha is the LCM. So this will become sin 3 alpha plus sin 2 alpha, और we can say that 1 upon sin 2 alpha, इसमें 1 upon sin 2 alpha इधर ले लेंगे, हो जाएगा 1 upon sin 2 alpha equals to 1 upon sin alpha minus 1 upon sin 3 alpha. This is that term. So this will become 1 upon sin 2 alpha equals to sin alpha into sin 3 alpha, the LCM, and this will become sin 3 alpha minus sin alpha. So this is sin C minus sin D formula. So this will become 2 cos C plus D by 2. So this will become cos 2 alpha into sin of alpha upon sin alpha into sin 3 alpha. So sin alpha से sin alpha cancel out हो गया, so ये हो गया हमारे पास sin 3 alpha equals to 2 cos 2 alpha into sin 2 alpha. So sin 3 alpha किसके इक्वल आ गया, sin 3 alpha equals to sin of 4 alpha के. So we can say that 3 alpha plus sin 3 alpha equals sin 4 alpha हो, तो 3 alpha plus 4 alpha किसके इक्वल होगा, equals to pi के, means 7 alpha equals to pi, or we can say that alpha equals to pi by 7. अल्फा किसके इक्वल आएगा, पाई बाई 7. इन आवर क्वेश्चन we suppose that alpha equals to pi by n. Initially we suppose the alpha equals to pi by n value. So and alpha comes out to be pi by 7. So alpha is equals to pi by 7 which is equals to pi by n. तो यहाँ से n की क्या वैल्यू आएगी, n equals to 7. So this is a 7-sided polygon. Okay, 1 upon A1 A2 equals to 1 upon A1 A3 plus 1 upon A1 A4 हो, तो हम क्या कह सकते हैं, दिस इज एन 7-sided polygon. ओके, इस क्वेश्चन में एक ट्रायंगल है जिसकी 2 साइड्स दी हुई है और एक एंगल दिया हुआ है, तो पूछा है कि बाकी 2 एंगल और थर्ड साइड बताने के लिए. तो पहले तो गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं. तो गिवन है a इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3, दूसरी साइड b इज इक्वल टू 2 और एंगल c दिया हुआ है 60 डिग्री. ठीक है, तो अब मैं कोसाइन रूल लगा के पहले तो तीसरी साइड फाइंड कर लेता हूँ. तो कोसाइन रूल कहता है cos c इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर ओवर 2ab. ओके, तो इससे क्या आ जाएगा, cos c कितना है 1/2, क्योंकि cos 60 1/2 होता है,
ए स्क्वायर यानी 1 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस बी, अब ये वाला b का स्क्वायर एक्चुअली, तो ये हो गया 4, ये एक्चुअली में 1 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर रहा था। अब ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 माइनस सी स्क्वायर ओवर 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी, तो a है मेरा 1 प्लस रूट 3, b है मेरा 2, तो यहाँ से अब डिनोमिनेटर में तो पहले ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 और ये वाला 2, तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये आ गया 2 इंटू 1 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 रूट 3 प्लस 4 माइनस सी स्क्वायर, तो इससे मेरा आएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस 2 रूट 3 माइनस 2 माइनस 2 रूट 3, ओके। तो यहाँ से आ गया सी स्क्वायर इज इक्वल टू 6, तो ये आया c इज इक्वल टू रूट 6, क्योंकि माइनस रूट 6 क्यों नहीं होगा, क्योंकि साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब सिमिलरली मुझे दोनों एंगल्स निकालने हैं, तो मैं अब कोसाइन रूल फिर से यूज कर लेता हूँ, तो या फिर मैं साइन रूल यूज कर लेता हूँ। तो साइन रूल कहता है कि साइन b ओवर b इज इक्वल टू साइन c ओवर c, तो इससे क्या आएगा कि साइन b ओवर जो b साइड है वो 2 है, और साइन c, तो साइन ऑफ 60 डिग्री होता है रूट 3/2 इंटू c कितना मैंने निकाला था, वो था रूट 6, ओके। तो ये हो गया यहाँ से कि साइन b इज इक्वल टू, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और रूट 3 अपॉन रूट 6 होगा 1 ओवर रूट 2, तो साइन b अब मेरा आ गया 45, तो इससे b आ गया 45 डिग्री। b मैं 135 क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे c ऑलरेडी दी हुई है 60 डिग्री, तो 60 प्लस 135 195 हो जाएगा, जो 180 से ज़्यादा है, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। अब सिमिलरली मैं साइन रूल लगा दूंगा a के लिए, तो उससे मुझे एंगल a पता चल जाएगा, तो यहाँ होगा साइन a ओवर a इज इक्वल, या फिर सिंपली एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c, ये ट्रायंगल के लिए होता है 180 डिग्री, तो मुझे पता है कि एंगल b की वैल्यू है 45 डिग्री, सिमिलरली एंगल c की वैल्यू हमें पता है 60 डिग्री, तो ये इक्वल हो जाएगा 180 के, तो इससे मेरा आ जाएगा एंगल a इज इक्वल टू 75 डिग्री, ठीक है। तो मुझे क्या क्या मैंने फाइंड कर लिया कि एंगल a इज 75 डिग्री, एंगल b इज 45 डिग्री एंड साइड c इज रूट 6, ओके। तो यही हमें फाइंड करना था, सो दिस इज आवर आंसर।